Students, this is Shashi, working as PGT Physics in KV2 Itanagar. In last lecture, we had talked about class 12th Physics chapter 13 Nuclei, in which we had discussed about composition and size of nucleus, mass energy relation, etc. important topics. Now we will continue our class from nuclear energy. Energy obtained from the nucleus of an atom is called nuclear energy. जो भी एक न्यूक्लियस का एटम होता है वहाँ से जो एनर्जी ऑब्टेन की जाती है उसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं. टू डिस्टिंक्ट वे ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियस आर. यहाँ पर टू वेज होते हैं न्यूक्लियस जो एनर्जी लेता है उसके लिए. फर्स्ट विल बी न्यूक्लियर फिजन एंड सेकेंड विल बी न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन. Mainly, the process of breaking of a heavy nucleus into two or more than two light nuclei is called nuclear fission reactions. While, on the other hand, if fusion two or more lighter nuclei to form a single heavy nucleus, it is known as a nuclear fusion. So, first of all, we discussed about nuclear fission. It is the phenomena of splitting of a heavy nucleus into two or more light nuclei. In a nuclear fission, reaction energy is positive, such that energy is released, so it is called exothermic. A thermal neutron can split a heavy nucleus of uranium 235 into beryllium 141 and krypton 92. In 1932, mainly, two German scientists, Otto Hahn and Strassmann, discovered this reaction, nuclear fission reaction. When they bombarded neutron on uranium Z92, then uranium nucleus break into almost equal parts, barium Z56 and krypton Z36. And in the fission reaction, three neutrons also produced. The reaction in atomic reactor and atom bomb is nuclear fission reaction. In nuclear reactor, due to nuclear reaction electrical power is produced, and in atom bomb energy is produced. In the nuclear fission reaction, huge amount of energy is produced. The reason is some of the mass of product produced is less than mass of reactants. There is some mass defect in it which more energy as per Einstein mass energy relation. Delta E should be equals to delta mc square. This energy is called nuclear energy. The mass number of produced nucleus is not same. The expected product produced is represented यहाँ पर जो मतलब होता क्या है मेनली हमारा जितना मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है वो मास अमाउंट में रिलीज होता है, इसीलिए से क्या बोला जाता है एक्सोथर्मिक. यहाँ पर जो हमारे जो दो साइंटिस्ट थे जर्मन साइंटिस्ट ऑटो हॉर्न एंड स्ट्रासमैन, उन्होंने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया. उन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि जैसे ही यूरेनियम जो है हमारा 92 उसे बॉम्बार्ड किया जाता है न्यूट्रॉन पे, तो जब उन्होंने देखा कि जो यूरेनियम का न्यूक्लियस है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. किस किस में? एक तो Z56 बैरियम एंड क्रिप्टॉन Z36 में, और इसके साथ ही थ्री न्यूट्रॉन ऑल्सो प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो इस टाइप की जो ओवरऑल रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर कोई भी एक हैवी न्यूक्लियस है वो टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है, दैट रिएक्शन इज नोन एज अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के अंदर भी हमारा जो होता है टू पार्ट्स आते हैं. एक होता है चेन रिएक्शन भी इसी का मतलब एक सब पार्ट है ना. तो व्हेन स्लो न्यूट्रॉन आर बॉम्बर्ड ऑन 92 यूरेनियम 235, देन every uranium atom breaks into two almost equal parts. In fission, three neutrons are produced and huge amount of energy is produced. So in this type these are two there are two types of chain reactions: controlled chain reaction and uncontrolled chain reactions. चेन रिएक्शन यहाँ पर एक फिजन का ही पार्ट होता है. चेन रिएक्शन के टू टाइप्स होते हैं मेनली, एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन. If the fission reaction is controlled in such a way that neither there is increase or not decrease, the reaction is controlled in such a way that energy remain below the explosion, then reaction is called controlled reaction. For this number,
of neutron absorbed by uranium 235 and number of neutron coming out remains same. The energy produced in chain reaction is used for constructive work. The control reaction is the main principle of atomic reactor. जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वहाँ पर जो न्यूक्लियर फिजन होता है वो हमारा होता है चैन रिएक्शन. इसको कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब कितने वो जो फिजन होगा, मतलब कितने नंबर ऑफ जो हमारे स्प्लिट अप्स होंगे वो कंट्रोल कर सकते हैं. हम एनर्जी को हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं. तो इस टाइप की रिएक्शन हमारी कहलाती है न्यूक्लियर कंट्रोल चैन रिएक्शन, और ये हमारा होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर. मेनली द अरेंजमेंट इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रोल चैन रिएक्शन फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर. ठीक है, तो ये हमारा वहाँ देखने को मिलता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर. इसके बाद आता है क्रिटिकल साइज. फॉर चैन रिएक्शन टू अकर द साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल मस्ट बी अबव द साइज कॉल्ड क्रिटिकल साइज. तो यहाँ पर जो चैन रिएक्शन के अंदर, चैन रिएक्शन मतलब जब हम अकर करते हैं तो साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल, जो हमारा जैसे यूरेनियम का हमारे यहाँ पर फिजन हो रहा है तो उसकी जो साइज़ होगी उसे बोला जाएगा, उससे जस्ट अबव वाले साइज़ को बोला जाएगा क्रिटिकल साइज. A released neutron must travel minimum through 10 centimeters so that it is properly slowed down thermal neutron to cause further fission. If the size of the material is less than the critical size, then all the neutrons are lost. अगर यहाँ पर जो हमारा जो भी फिजनेबल हमारा पार्ट है, फिजनेबल मटेरियल है, अगर उसकी साइज़ क्रिटिकल साइज से कम होगी देन ऑल न्यूट्रॉन्स आर लॉस्ट. तो यहाँ पर जो हमारे 3 न्यूट्रॉन्स हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे, वो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे. If the size is equal to the critical size, then the number of neutrons produced is equal to the number of neutrons lost. और अगर यहाँ पर जो साइज़ है वो इक्वल है क्रिटिकल साइज के, then the number of neutrons produced is equal to the number of neutron lost. तो यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लॉस्ट होता है. If the size is greater than critical size, then then the reproduction ratio of neutron is greater than 1 and chain reaction can occur. आप देख सकते हैं जो फर्स्ट डायग्राम है वहाँ पर क्या है, दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और जो हमारा इफ़ द साइज इज इक्वल टू द क्रिटिकल साइज, साइज और क्रिटिकल साइज दोनों इक्वल है, तो देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लॉस्ट. तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लॉस्ट और n इज इक्वल टू 1 है और कैपिटल N भी 1 है, दोनों सेम है. अगर यहाँ पर हमारा n जो है वो कम होता है, लेस देन होगा, तो उस केस में हमारे न्यूट्रॉन लॉस्ट हो जाएंगे. ठीक है, और थर्ड केस, ये तीनों डायग्राम हमारे तीनों क्रिटिकल साइज के रेशो को बता रहे हैं, रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है. ये है हमारा मेनली न्यूक्लियर फिजन. इसके बाद हमारा आता है न्यूक्लियर फ्यूज़न. Fusion is, as we know that nuclear fusion is defined as a type of nuclear reaction in which two lighter nuclei merge into one another to form a heavier nucleus accompanied by a release of a large amount of energy. यहाँ पर क्या होगा कि दो जो स्मॉलर पार्ट है वो एक हैवी पार्ट बनाने के लिए एक दूसरे से मतलब नियर बाय आते हैं, एक दूसरे से अकम्पनी करते हैं. ठीक है, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है. Energy source of sun, for example energy source of sun is a type of nuclear fusion. यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल 1h1 + 1h1, तो दोनों जब मिलेंगी तो हमारा बनेगा 1h2 और साथ में एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर रिलीज होगा और यहाँ पर हमारी एनर्जी भी रिलीज होगी 0.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Same again 1h1 will be produced will be fusion with 1h2, then helium will be produced और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगेन फिर 2 हीलियम पार्टिकल्स जब मिलेंगे फ्यूज़न करेंगे तो हमें मिलेगा 2 हीलियम 4 विद 2 हाइड्रोजन एटम एंड 12.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. तो ये होता है हमारा प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल. सेम हमारा होता है एनर्जी सोर्स ऑफ अ स्टार. वहाँ पर होता है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल. सबसे पहले जो हमारा कार्बन एटम है वो एक हाइड्रोजन एटम के साथ फ्यूज़न करेगा और बनाएगा नाइट्रोजन एटम और साथ में थोड़ा एनर्जी रिलीज होगी. अगेन जो हमारा नाइट्रोजन एटम बनेगा वो फ्यूज़न करेगा और एक पॉजिट्रॉन रिलीज करेगा. फिर उसके बाद हमारा जो एक कार्बन एटम है वो अगेन एक हाइड्रोजन एटम के साथ बनेगा और एनर्जी रिलीज करेगा. इस तरीके से यहाँ पर हमारा फ्यूज़न होता रहता है और डिफरेंट हमें यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती रहेगी और डिफरेंट डिफरेंट हमें यहाँ पर हैवियर जो हमारे फ्यूजनेबल मटेरियल है वो हमें मिलते रहते हैं यहाँ पर. तो इस तरीके से हमने देखा ये होता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूज़न.
न्यूक्लियर फिजन जो होता है हमारा वो यूज़ होता है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है वो हमारा क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे एनर्जी सोर्स ऑफ सन और एनर्जी सोर्स ऑफ स्टार, वहाँ हमारा यूज़ होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न का एक रिएक्शन हम यहाँ पर भी दे सकते हैं, जनरल फार्मूला एग्जांपल के लिए, जैसे एक हाइड्रोजन के साथ जब फ्यूज़न करेगा तो वो बनाएगा 1 हाइड्रोजन 2, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे रिलीज भी होते हैं और कुछ एनर्जी हमारे रिलीज होती है 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द इसेंशियल कंडीशन फॉर कैरिंग आउट न्यूक्लियर फ्यूज़न इज दैट द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल शुड बी वेरी हाई। फ्यूज़न के लिए एक इसेंशियल कंडीशन है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई होना चाहिए, सो दैट पार्टिकल ऑफ मटेरियल हैज़ इनफ एनर्जी टू पेनिट्रेट द कोलम बैरियर, ताकि वो जो हमारा कॉलम बैरियर है, मतलब फ्यूज़न के लिए जो एक रिक्वायर्ड एनर्जी है वो वहाँ पर उसे अवेलेबल हो। एज एनर्जी इज सप्लाइड इन न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सप्लाई की जा रही है। वाइल इन अदर हैंड न्यूक्लियर फ्यूज़न के अंदर हमने एनर्जी वहाँ पर रिलीज होती है तो उसे क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूक्लियर रिएक्टर। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। न्यूक्लियर रिएक्टर भी एक टाइप मतलब न्यूक्लियर फिजन का ही पार्ट होता है, हमने ब्रीफ डिस्कशन किया था अभी। इसका प्रिंसिपल जो है इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल न्यूक्लियर चैन रिएक्शन। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, मेन पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर, फर्स्ट होता है इसका न्यूक्लियर फ्यूल। commonly used fuel in nuclear reactors are uranium 233, 235 and plutonium 239। ये इसके अंदर मेनली न्यूक्लियर फ्यूल एज अ यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा मॉडरेटर। दोज मटेरियल्स विच स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड मॉडरेटर। तो यहाँ पर जो मॉडरेटर होता है वो क्यों यूज़ किए जाते हैं, जो यहाँ पर फास्ट रिएक्शंस होती है, चैन रिएक्शन जैसे हमने बात की थी, फिजन जो होता है बहुत स्पीडली होता है, तो उसकी जो स्पीड है उसे स्लो करने के लिए यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे, जो भी हम अपना मटेरियल यूज़ करेंगे वो क्या कहलाएगा, मॉडरेटर। यूजुअली इट विल बी D2O, ग्रेफाइट, ड्यूटेरियम एंड पैराफिन आर यूज्ड एज मॉडरेटर, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे जनरली यूज़ किए जाते हैं एज अ मॉडरेटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंट्रोल रॉड्स। दे हैव एबिलिटी टू कैप्चर द स्लो न्यूट्रॉन्स। बोरॉन और कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड एज कंट्रोल रॉड्स। इनके पास एबिलिटी होती है न्यूट्रॉन्स को स्लो करने की। यहाँ पर जो हमने बात की थी, जैसे चेन रिएक्शन के 3 पार्ट्स बताए थे कि वहाँ पर कभी क्या होता है, वो मतलब 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, कभी नहीं होते हैं, तो मतलब उनको स्लो डाउन करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसके लिए हमने किसे यूज़ किया है, कंट्रोल रॉड्स को। कंट्रोल रॉड्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो न्यूट्रॉन्स को कैप्चर कर ले, स्लो कर दें, ठीक है। तो बोरॉन और कैडमियम रॉड्स आर यूज एज कंट्रोल रॉड। इसके बाद आता है सेफ्टी रॉड्स। दीज आर मेड ऑफ मटेरियल विच हैज़ हाई टेंडेंसी टू एब्सॉर्ब न्यूट्रॉन। ये मतलब सेफ्टी रॉड्स होती है वो बनाए, मतलब ऐसा मटेरियल है जो इनके पास बहुत हाई टेंडेंसी होगी किसके लिए, न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब करने के लिए। ये न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब कर लेंगे, जो भी हमारे एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं उन्हें ये इजीली एब्सॉर्ब कर सकते हैं। These rods reduce न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर टू लेस दैन यूनिटी, मतलब 1 से भी कम कर देते हैं हमारे न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन को। इसके बाद आता है कूलेंट। लिक्विड विच हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट इज़ यूज्ड एज कूलेंट। ये जो मतलब बहुत एक लिक्विड होता है और इसकी हाई स्पेसिफिक हीट होती है और इसे क्या बोला जाता है, कूलेंट। इट रिमूव्ड हीट फ्रॉम रिएक्टर को। जैसे इतना सारा प्रोसेस हो रहा है, चेन रिएक्शंस वगैरह हो रही है, यहाँ पर मॉडरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल, तो जो हमारा मतलब जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर होगा उसकी पूरी जो ओवरऑल बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा हीट मतलब उसमें बन जाती है। तो इट रिमूव्स हीट फ्रॉम रिएक्टर को, तो ये क्या करेगा, जो कूलेंट है वो हीट को वहाँ से रिमूव कर देगा, जनरली एट लो टेम्परेचर। वाटर एंड हैवी वाटर, जो हमारा D2 होता है वो उसे हैवी वाटर बोलते हैं, सर्व एज कूलेंट। इसे कूलेंट की लिए यूज़ किया जाता है। एट हाई टेम्परेचर लिक्विड सोडियम इज़ यूज एज कूलेंट। हाई टेम्परेचर पर लिक्विड सोडियम को भी एज अ कूलेंट यूज़ किया जाता है। कूलेंट का आप लोगों ने कार वगैरह में भी सुना होगा, जो कार के इंजन वगैरह में भी हम लोग कई बार जब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो वहाँ पर हम कूलेंट यूज़ करते हैं। और भी जैसे आपके इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, लाइक हमारा इन्वर्टर वगैरह, वहाँ भी हम कूलेंट यूज़ करते हैं। तो कूलेंट अगर किसी भी डिवाइस के लिए यूज़ किया जा रहा है तो वो क्यों यूज़ किया जाता है, हीट को कम करने के लिए एट दैट टाइम।
ओके, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर का, वो है शील्डिंग. द होल्स रिएक्टर इज कवर्ड विद स्टील चैम्बर विच फर्दर कवर्ड बाय concrete walls of width 2 to 2.5 meters so that harmful radiation may not leak. जो मतलब ये सारा रिएक्शंस हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, बहुत सारे रिएक्शंस, मतलब फिजन हो रहा है ना, यूरेनियम और इनके हैवी पार्टिकल्स का, न्यूट्रॉन्स का यहाँ पर एमिशंस हो रहा है, एनर्जी रिलीज होंगी, तो यहाँ पर बहुत हार्मफुल रेडिएशंस भी रिलीज़ होती है. तो उन्हें बाहर, मतलब हमें एनवायरनमेंट में ऐसे नहीं छोड़ सकते ना हम कि ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलीज़ कर दें. तो अगर वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाएंगी तो बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगी. इसीलिए इसको क्या किया जाता है, जो पूरा होल रिएक्टर है उसे कवर किया जाता है स्टील चैम्बर से. इसकी विड्थ होती है, उसकी वॉल्स की जो विड्थ होती है 2 to 2.5 मीटर. इसे बोला जाता है शील्डिंग. किस मतलब जो उसे कवर किया जा रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर को, दैट पार्ट इज नोन एज अ शील्डिंग. ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स की. ठीक है, ये डायग्राम है. यहाँ पर इसकी वर्किंग होती है. व्हेन अ स्लो न्यूट्रॉन इज मेड टू फॉल ऑन फ्यूल देन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन स्टार्ट. जैसे ही हम एक स्लो न्यूट्रॉन है उसे फ्यूल के उसमें यूज़ करते हैं तो न्यूक्लियर फिजन हमारा क्या होता है, रिएक्शन स्टार्ट. द एक्सेस न्यूट्रॉन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन आर एब्सॉर्ब बाय कंट्रोल रॉड्स. और जो भी हमारे एक्सेस न्यूट्रॉन्स होंगे यहाँ पर रिलीज, उन्हें कौन कर लेगा, कंट्रोल रॉड एब्सॉर्ब कर लेगी. एंड हीट एनर्जी इज रिमूव बाय कूलेंट. और यहाँ पर जो हीट एनर्जी होगी वो कूलेंट उसे रिमूव कर देगा. टू स्टॉप न्यूक्लियर रिएक्शन कैडमियम रॉड्स आर इंसर्टेड. जो कैडमियम रॉड्स है यहाँ पर वो न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए यूज़ की जाती है. मतलब ऐसा तो नहीं है कि ना हम इसे चलते ही रहने दे जाएंगे, हम इसे कंट्रोल करेंगे, मतलब हम इसे स्टॉप करेंगे. तो जब भी हम चाहेंगे कि डिज़ायर्ड टाइम होगा कि हमें अभी इसे स्टॉप करना है, बहुत हमारा ये सब कुछ यूज़ हो चुका है, फ्यूज़न जो हमारा फिज़न है वो हो चुका है वांटेड अमाउंट में, तो हम क्या करेंगे, कैडमियम रॉड की हेल्प से उसे स्टॉप कर देंगे. कंट्रोल न्यूक्लियर चैन रिएक्शन टेक प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एनर्जी थस प्रोड्यूस इज यूज फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस. और इसकी हेल्प से हम जो यहाँ पर एनर्जी हमने यहाँ पर प्रोड्यूस की है उसे हम कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं. इन बार्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वर्किंग इज अप्सरा, Zerlina, CIR and Dhruva fast breeder reactor. These nuclear reactors use thorium or natural uranium as fuel. In this reactor, fast-moving neutrons can cause nuclear fission reaction. Hence, moderator are not used in this reactor. ये था हमारा मेनली न्यूक्लियर रिएक्टर. इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. होपफुली यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.